قرآن مجید کا تیسرا پارہ جسے پاروں کے زبان کے اندر تلک الرسل کا نام دیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے تیسرے پارے کے آغاز کے اندر ایک اہم بات بیان فرمائی. دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے, تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. اللہ فرماتا ہے یہ رسول ہیں, ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. وہ کیسے دی؟ منہم من کلم اللہ, ان میں سے بعض تو ہوگی جن سے اللہ نے کلام کیا. ورفع بعضهم درجات, اور بعض ہوگی جن کے اللہ رب العالمین نے درجات کو بلند کیا. قرآن مجید کی یہ سورت ہے, یہ بھی سورہ بقرہ چل رہی ہے. ابھی آخر کے اندر ایک آیت آتی ہے, وہ آیت کیا گئے کہ ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں, اقرار کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا مومنوں کی صفات کے طور پر, لا نفرق بین احد من رسلی, ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی رسول میں کوئی تفریق نہیں کرتے. اب کوئی آپ سے یہ کہے بھئی قرآن کی آیت میں تو ایک مقام پر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بعض کو بعض پر فضیلت دی, اور دوسرے مقام پر یہ بات آتی ہے کہ ہم کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے, تو یہ تو تعارض ہے, یہ تو ٹکراؤ ہے. یہ ٹکراؤ نہیں, یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی, مطلب یہ کہ ہم کسی رسول کو ماننے نہ ماننے میں فرق نہیں کرتے, بلکہ ہم سب کو مانتے ہیں. ہم سب کو مانتے ہیں. دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے گے ان سب پر ہر مسلمان کا ایمان ہے. اور یاد رکھیں, اگر کوئی ان میں سے ایک رسول کو نہ مانے, ایک نبی کو نہ مانے, تو مسلمان نہیں ہو سکتا. دوسری بات, ہمارا ایمان کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء سے افضل ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا ہوا کہ ایک صحابی اور یہودیوں کے سامنے ایک یہودی کا سامنا ہوا. صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے, یہودی کہنے لگا کہ بھائی اللہ رب العالمین نے سب سے افضل موسیٰ علیہ السلام کو بنایا. مسلمان کو غصہ آ گیا, زور سے تماچا شیک کھینچ کے مارا یہودی کو. اس کو غصہ آیا, دونوں اللہ کے نبی کی عدالت میں آئے, تو دونوں نے اپنا مداوا رکھا اور اپنا دعویٰ رکھا کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ آگے. اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ لا تفضلونی علی الانبیاء, کہ مجھے انبیاء پر فضیلت مت دو, یا اس طرح کے الفاظ کے ساتھ میں وہ روایت موجود ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, اور اللہ کے نبی فرما رہے کہ مجھے فضیلت مت دو. مطلب کیا آگے
تو उसके बारे में उलमा ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात जो बयान फरमाई है वो तवाजु के एतबार से, तवाजु समझते हैं, खाकसारी, एक इंसान में इतना नरम मामला होता है कि वो नहीं चाहता कि कोई मुझे किसी पर फजीलत दे, होते नहीं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को उन सब जिनको आप सोच लो उन सब में अफजल थे। या अल्लाह के नबी ने ये जो मना फरमाया है वो इस तरह मना फरमाया कि कोई किसी नबी को किसी नबी पर इस तरह फजीलत ना दे कि दूसरे नबी की शान में हिफारत मकसूद है। अच्छा जरा सोचें, कभी कभी बात करने का अंदाज नहीं होता, लोग आपकी तारीफ करें, कोई आपकी तारीफ करते हुए कह दे आप तो मच्छर से अफजल हो, मक्खी से अफजल हो। भाई आपकी तारीफ करी ना, लेकिन ये तारीफ पसंद आएगी आपको? यार कौन सा मच्छर मक्खी आया है? तो ऐसा नहीं करना हमें कि किसी नबी की शान के अंदर नक्स पैदा हो जाए। अब आगे चल के फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयतुल कुर्सी को बयान करना, और याद रखना आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की बड़ी अजीम आयत है, बड़ी अजीम आयत। और ये वो आयतुल कुर्सी है जो अगर हमें याद ना होना तो फिर मैं क्या कहूं हम कौन से मुसलमान हैं। और अल्लाह माफ करे अगर मैं अभी हाथ खड़े कराऊं, कुछ हाथ उड़ जाएंगे जिनको याद होगी, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको याद नहीं होगी। बोलो मैं गलत कह रहा हूं? कौन सी आयतुल कुर्सी ये? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा फितरे के जो खजूर आते हैं, फितरे के जो खजूर, उनकी देखभाल के लिए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को मुकर्रर किया। सही बुखारी की हदीस। रात में बिस्तर पर गए, खजूर को कोने में रखा, क्या देखा कि कोई आया है, खजूर को समेट रहा है, जल्दी जल्दी भर रहा है। नींद खुल गई, पकड़ लिया, कहा चोरी करता है, कहा तुझे अल्लाह के नबी के पास में लेकर चलता हूं। तो कहने लगा नहीं मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे भूखे गए, फला 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 बहाने बना करके वो कहता है कि वो चला गया, उनको रहम आ गया, छोड़ दिया। सुबह अल्लाह के नबी से मिले, कहा पूरा माजरा सुनाया, कहा कि अल्लाह के नबी कोई आया था, सुनाने लगा बहाने, उसने ये कहा कि मेरे बच्चे भूखे गए, मैं फला भूखा हो, कई दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, मैंने छोड़ दिया। अल्लाह के नबी फरमाते अबू हुरैरा वो झूठा था, वो फिर आएगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फिर सोए, रात को वो फिर आया, फिर भरने लगा, फिर पकड़ा, जब पकड़ के कहा कि मैं अल्लाह के नबी के पास ले चलता हूं, तो कहने लगा कि मुझे माफ कर दे, मैं बड़ा भूखा हूं, प्यासा हूं, कई दिनों से कुछ नहीं मिला, इस तरह के कुछ बहाने बना करके फिर चला गया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फिर छोड़ दिया। सुबह अल्लाह के नबी को मिले, पूरा माजरा सुनाया, कहा कि अबू हुरैरा वो झूठा था, वो फिर आएगा। अब जब तीसरी रात आई, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु तहिया करके सोए कि आज नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा। और जब नबी ने कहा तो यकीन था, हमारी और आपकी तरह नहीं। जब नबी ने कहा कि आएगा तो यकीन था, बिस्तर पर लेटे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कब आता है, और आया। और इस बार लपक के पकड़ा, कहा कि रोज आता है, रोज बहाने बनाता है, फला फला बहाने करता, मैं तुझे छोड़ देता हूं, आज नहीं छोड़ूंगा। तो रोजाना बहाने बनाता है और चोरी करके खजूर ले जाता है। शैतान कहता है अबू हुरैरा मैं तुझे एक बात ना सिखा दूं? कहा कौन सी बात? कहा कि मैं तुझे एक दुआ बताता हूं, अगर तूने उस दुआ को पढ़ लिया, मैं क्या मेरी कोई बिरादरी का तेरे पास नहीं आएगा। कहा कौन सी दुआ? शैतान ने कौन सी दुआ बताई थी? आयतुल कुर्सी। हमारे जो भाई है ना, बात भाई,
وہ इसी दलील को बुनियाद बना कर क्या कहते हैं, शैतान भी हक बात कहते हैं तो हम मान लेते हैं, अल्लाह के बंदो हम नहीं मानते जब तक वो नबी की मोहर लगा करके ना आए, क्योंकि ये दीन का मसला था। सुबह हुई, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिले, पूरा माजरा सुनाया, सब कुछ बताया, कहा कि अल्लाह के नबी उसने मुझसे ये कहा कि अगर तूने आयतुल कुर्सी को पढ़ लिया कोई शैतान तेरे पास में नहीं आएगा। अल्लाह के नबी के ये बात सच गए? अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, अबू हुरैरा वो झूठा था लेकिन ये बात सच्ची कह करके गए। ये आयतुल कुर्सी की पावर है, ये ताकत है आयतुल कुर्सी के अंदर कि कोई शैतान पास भी आकर के नहीं भटकता। आयतुल कुर्सी है क्या? तो पूछे क्या है आयतुल कुर्सी के अंदर? पूरी आयतुल कुर्सी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ है। अल्लाह क्या फरमाता है इसी आयतुल कुर्सी के अंदर, ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, वो अल्लाह वो ही जिसे नींद तो बहुत दूर की बात है ऊंघ तक नहीं आती। गाड़ी का ड्राइवर हो, ड्राइवर को अगर ऊंघ आ जाए तो पैसेंजर का क्या हाल होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी कायनात को चलाने वाला है, वो इस पूरी दुनिया के निजाम को संभालने वाला है, नींद तो बहुत दूर की बात है, उसे ऊंघ तक नहीं। आगे चल के आयतुल कुर्सी के बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बड़ी बात, बड़ी अहम बात बयान करनी। क्या फरमाता अल्लाह ताला, ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं। तुम तलवार के जोर के ऊपर, तलवार की नोक के ऊपर, बंदूक की नोक के ऊपर किसी को इस्लाम में कबूल करवा सकते? लोग कहते नहीं आज इस्लाम तो तलवार के जोर से फैला। लोगों, तलवार के जोर पर आप किसी का जिस्म झुका सकते हो, उसका दिल नहीं झुका सकते। और जब तक बंदा दिल से मुसलमान ना हो, उसके जिस्म के झुकने से वो मुसलमान नहीं बनता। ये इस्लाम है, वो इस्लाम है जिसने कभी किसी काफिर के ऊपर जबरदस्ती नहीं रखी, लेकिन अगर मुसलमान हो जाए तो अब जबरदस्ती है कि नहीं? बोलो। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, बच्चा अगर 7 साल का हो जाए उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दो, अगर 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो बच्चे को ताज़ीबन मारो, अदम सिखाने के लिए मारो, नमाज पढ़ाने के लिए मारो। हमारे तो बूढ़े बूढ़े बच्चे हो गए, बच्चे नहीं बूढ़े बूढ़े बच्चे हो गए, उनको नमाज तक पढ़ना नहीं आता। और अब्बा ने क्या सोचा हुआ है, बच्चा है बच्चा है बच्चा है, कुछ बुढ़ा हो गया उसको बच्चा बच्चा लगता है। अल्लाह के बंदो, नबी की बात पर अमल करो, वरना इन बच्चों को तुम्हारे हाथ से निकलने में वक्त नहीं लगेगा। और देख नहीं रहे नई नस्लों को क्या हाल हो रहा है। ये नई नस्लें जो पता नहीं बेटों की शक्ल में हो कि बेटियों की शक्ल में गैरों के साथ में इस्लाम को छोड़ करके भाग रही है। ये तुम्हारी कम परवरिश का नतीजा है, माँ बाप की गलत परवरिश का नतीजा है। जो माँ बाप अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं देते, आज उनके बच्चों की सोच बिगड़ बन चुकी है। वो ना कुरान को जानते हैं, ना हदीस को जानते हैं, ना नमाज को जानते हैं, ना रोजे को जानते हैं। आगे चल के अल्लाह क्या फरमाता है, देखिए जरा, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा। ये जो उलमा होते हैं ना, जो खुतबा आते हैं, वाइज़ीन आते हैं, बेचारे कहते हैं आपसे कि ये जो मदारिस ये दीन के किले हैं, इन किलों के जरिए तुम्हारे दीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचा के रखा हुआ है। ये आते हैं
اپنے جیب کے لیے تم سے نہیں مانگتے, اپنی تجوری بھرنے کے لیے تم سے نہیں مانگتے. یہ اگر تم سے سوال کرتے گے تو تمہارے بچوں کے لیے سوال کرتے گے, تمہارے دین کی بقا کے لیے سوال کرتے گے. یہی وجہ ہے کہ آج اس دیش کے جو لوگ کفار دشمن ہیں ان کی نگاہیں مدارس کے اوپر ہیں. ان کو خطرہ اسکولوں سے نہیں ہے, ان کو خطرہ یونیورسٹیوں سے نہیں ہے, ان کو سب سے بڑا خطرہ اگر کسی سے ہے تو مدرسوں سے ہے. وہ جانتے ہیں کہ اگر مدرسے زندہ ہے تو اسلام زندہ ہے. اور قرآن کو دیکھیں ذرا, اللہ رب العالمین نے ثواب کتنا رکھا. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے اسی پارے کے اندر, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں, ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے, اس ایک دانے کی طرح. کتنے دانے کی طرح؟ ایک دانے کی طرح. انبتت سبع سنابل, جس کو کھیتی کے اندر اگایا, جب وہ اگا تو 7 بالیاں لے کر کے اگا. کتنی بالیاں؟ اکیلا تھا, جب آیا لے کر کے تو کتنی بالیاں لایا؟ 7 بالیاں. انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ, اللہ فرماتا ہے 7 بالیوں میں سے ہر بالی کے اندر 100 دانے گے. کتنے دانے؟ 100 دانے. اللہ کہنا کیا چاہتا ہے, اگر میرے بندے تو نے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کیا, اللہ رب العالمین تجھے بدلہ 10 گنا نہیں دے گا, 20 گنا نہیں دے گا, 100 گنا نہیں دے گا, 200 گنا بھی نہیں دے گا, بلکہ تیرا رب اتنا مہربان ہے, وہ تیرے ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا کر کے دے گا. 700 گنا کر کے دے گا. یہ اللہ کا انعام ہے. اور آج ہم سوچتے ہیں کہ یار مال کم ہو گیا. نہیں, نبی کی گارنٹی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں ما نقصت صدقۃ من مال, اللہ کی راہ میں جو تم مال خرچ کرتے ہو تمہارے نبی کی گارنٹی ہے, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں. تو جب بھی کہا جائے کبھی پیچھے مت رکھنا. آگے چل کے اللہ رب العالمین نے اب یہاں پر سود کا بیان کیا. سود, آپ جانتے سود کسے کہتے ہیں؟ چھوٹا بچہ کہہ رہا میں نہیں جانتا. بیاج سمجھتے ہو؟ بیاج, پیاز سمجھتے ہو؟ پیاز, لہسن سمجھتے ہو؟ تو بیاج جس کو ہندی میں کہتے ہیں بیاج, سود. دیکھیں سود کی بہت ساری شکلیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے, اور اللہ معاف کرے ہمارے علیحدہ میں رائج ہے. لوگ سمجھتے ہیں سود, سمجھتے نہیں. آج ہمارے یہاں کیا معاملہ چلا ہوا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مکان چاہیے, یعنی قرضہ چاہیے آپ کو, بڑا قرضہ, 3 لاکھ کا قرضہ, 4 لاکھ کا قرضہ, تو آپ کیا, اگر آپ کے پاس کوئی مکان ہے تو آپ کیا کرتے ہو کہ یہ مکان گروی رکھ لے, تو اس کو گروی رکھ لے اور مجھے 3 لاکھ روپے قرضہ دے دے اور تو اس سے فائدہ اٹھا. اگر سامنے والا تمہارے گروی شدہ مال سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ سود ہے. تو لوگ لیز پہ مکان لے لیتے ہیں نا قرضے کے نام پر, بھئی میں نے قرضہ دے رکھا ہے, اس کی مجھے یہ چیز دے دی کہ میں فائدہ اٹھاؤں, وہ بھی راضی ہے, میں بھی راضی ہوں. غلط کیا ہے؟ سود ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر وہ قرضہ جو فائدہ لے کر کے آئے وہ سود ہے. ہر قرضہ سمجھ لینا اچھی طرح. اور سود کتنا بڑا گناہ ہے. قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, اے مومنو اللہ سے ڈرو اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے سے بچو. کیا ہے جنگ کا اعلان؟ اللہ اس کے رسول کے خلاف, یہ سود لینا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سود کے 70 دروازے. کتنے دروازے؟
70 दरवाजे, और उनमें सबसे हल्का गुनाह 70 दर्जे हैं सूद के, और सबसे हल्का गुनाह क्या है सूद का? नऊज़ बिल्लाह, कोई बेटा अपनी मां से जिना करे। बर्दाश्त कर लो क्या? और हमारी कौम खा रही, बिजनेस के नाम पर, अच्छे मकान के नाम पर, बैंक बैलेंस के नाम पर, पता नहीं किस किस के नाम पर सूद खा रही है। आगे चल के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखे एक उसूल दिया, कितना प्यारा अल्लाह ने उसूल दिया कि तुम्हें कोई लेन देन करना हो, कोई तुम सौदा कर रहे हो, तो सौदे को लिखो। कब से अल्लाह ने दे रखा है, लेकिन अगर आप 50-60 साल पहले भी जाएंगे तो लोग जबानों के ऊपर सौदा कर दिया करते थे, जबानों के ऊपर। लेकिन जब 30-40 साल गुजरे तो जिसने सौदा किया वो उसका इंतकाल हो गया, तो उसके बच्चों ने क्या कहा कि कागज दिखाओ। क्या दिखाओ? कागज। अगर हमने कुरान को उस वक्त से पढ़ा होता और इसके ऊपर अमल किया होता, तो कुरान में अल्लाह ने हमें बताया था जब तुम्हें लेन देन करना हो, कोई रकम किसी को देनी हो, कोई सौदा करना हो, तो उसको लिख लो, लिख लो उसको। और एक बात अल्लाह ने वो बताई आपको, पता है क्या? लिखने के साथ में अल्लाह क्या फरमाता है? वस्तशहीदू शहीदैन मिन रिजालिकुम, उसके ऊपर 2 गवाहों को गवाह भी बना लो। कितने को? 2 गवाह बना लो। और फिर आगे अल्लाह ने क्या फरमाया? फ़इल्लम यकूना रजुलैन, अगर तुम्हें 2 मर्द गवाह ना मिले, फ़रजुलुन वम्रातान, तो एक मर्द हो और 2 औरतें हो, उनको गवाह बना लो। ये कुरान ने हमें सिखाया था, लेकिन हम सब भूल गए। और फिर आखिर के सूरह बकरा की आयत के अंदर वो आयत आती है जो 2 आयतें हैं जिनकी फजीलत कितनी भी अहम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा रात को इन 2 आयतों को पढ़ ले तो उस बंदे के लिए काफी हो जाती है। 2 आयतें, और क्या काफी हो जाती है? सब कुछ के लिए काफी, हर चीज की हिफाजत के लिए काफी। तो ये बड़ी फजीलत है। फिर आगे चल के सूरह आले इमरान शुरू होती है। देखिए, आले इमरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी बातें बयान फरमाई। हम 2 बातें देखते हैं, बड़ी मेन बातें। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में क्या फरमाता है? हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब व उखर मुतशाबिहात। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किताब को उतारा, इस कुरान को उतारा, इनमें से बाद आयतें मुहकम गए और बाद आयतें मुतशाबिहात गए। समझते हैं इस बात को? कुरान की आयतें 2 तरह की हैं, एक मुहकम और एक मुतशाबिहात। ये बड़ा अहम मसला है। मुहकम किसे कहते हैं? मुहकम कहते हैं जिसके माना आसानी से आप समझ सकते हैं, और मुतशाबिहात जिसके कई माना निकल जाते हैं, कई माना। अब जैसे क्या है, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलीमा है, और एक मकाम पर फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलाम के लिए क्या फरमाया? वो मेरी रूह से है, वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, इस तरह के अल्फाज। तो ईसाइयों ने क्या कहा कि देखो तुम्हारे कुरान में खुद लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की रूह है, तो जो अल्लाह की रूह होगा वो कौन बनेगा? अल्लाह बनेगा। अब बेचारा आम फेम आदमी हो तो यार ये तो सही कह रहा है, नहीं। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? एक मकाम पर अल्लाह फरमाता है, इन्न मसल ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम खलक़हु मिन तुराब सुम्मा क़ाल लहु कुन फयकून। अल्लाह फरमाता है ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम अलैहिस्सलाम की तरह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको मिट्टी से बनाया और कहा बन जाते, वो बन गए। अल्लाह ने क्या जवाब दिया ईसाइयों को? अगर तुम कहते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर मां के पैदा हुए, तो आदम को जरा देख लो, उनके तो बाप भी नहीं है, मां तो बहुत दूर की बात है, उनके तो बाप भी नहीं है, उनके लिए क्या कहूंगा? और आगे चल के
फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बात कही है। अल्लाह क्या फरमाता है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम दुनूबकुम। ए नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों से कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तुम मेरी इत्तिबा करो। किसकी इत्तिबा करो? दुनिया के इमामों की नहीं, जिनको तुमने बनाया। हाँ, इज्जत सबकी करो, एहतराम सबका करो, लेकिन जहां नबी की बात आ जाए, नबी का फरमान आ जाए और तुम कहो कि मैं फला की मानूंगा, अल्लाह की कसम ये कुरान को मंजूर नहीं, ये नबी को मंजूर नहीं, ये अल्लाह को मंजूर नहीं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते थे कि तुम कहो मैं फला की मानू नबी की हदीस के मुकाबले में, मैं फला की मानू, मुझे डर है कि कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ऊपर से पत्थरों की बारिश न कर दे। लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में जा बजा अगर किसी की बात मानने को कहा है तो वो फकत और फकत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए इमाम मालिक कहते थे, बड़ा मशहूर कौल है, मदीना के अंदर अपने बच्चों को दर्स देते थे, अपने बच्चों से कहते, अपने स्टूडेंट से कहते, ए मेरे बच्चों सुनो, कुल्लु कौलिन युखद व युरद इल्ला साहिब हादल कब्र। मेरे बच्चों, दुनिया के अंदर किसी की बात को लिया भी जा सकता है, छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन जब बात आ जाए इस कब्र वाले की, किसकी तरफ इशारा करते हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ। जब बात आ जाए इनकी, मदीना वालों की, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी बात को कभी छोड़ा नहीं। अल्लाह ताला हमें सही मानों के अंदर कहने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें जिंदा रखे, इस्लाम को जिंदा रखे, खात्मा फरमाए, ईमान पर फरमाए, आमीन रब्बिल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।